بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نا امیدی مت رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ اس دنیا میں جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ اگر تم سے کوئی ناراض ہے اور اس کا یہ غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے تو اس کا وہ غرور کبھی ٹوٹنے مت دینا۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہے، اسی لیے تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی۔ کسی غریب کو تنگ مت کرنا، کیونکہ تمہاری طاقت پیسہ ہو سکتی ہے لیکن ایک غریب کی طاقت اللہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی لیکن اپنا رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا۔ خوشیاں پیسوں سے نہیں نصیب سے ملتی ہیں۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتا ہے۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا ہو، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تمہاری مشکل بہت چھوٹی ہے لیکن تمہارا اللہ بہت بڑا ہے، اس لیے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں بلکہ نعمت ہوتی ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ شکر کرنا سیکھو، بے شک اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے انہیں گنتے گنتے۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ تجربہ غلط فیصلوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، کیونکہ جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لینا چاہیے۔ اس دنیا میں بدترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو تم میں خود موجود ہو۔ اس دنیا میں انسان کو معاف ہر بار کرو مگر اعتبار صرف ایک بار کرو۔ انسان ہی ایک واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظوں میں ہوتا ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔
जो शख्स तुम्हारी खुशी चाहे उसका उदास होना तुम्हारे लिए फिक्र की बात है। जिससे मोहब्बत की जाए उसका मुकाबला नहीं किया जाता, बल्कि उस इंसान के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। हक के रास्ते पर सबसे बड़ी सख्ती ये आती है कि इंसान तन्हा रह जाता है। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो तुम फौरन उसकी अच्छाइयों को याद कर लो। मदद करना एक महंगा तोहफा है, इसलिए सबसे इसकी तवक्को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग ही दिल के अमीर होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी दोस्ती तवील चले तो इन 2 चीज़ों पर अमल करो। पहला, अपने दोस्त से गुस्से में बात मत करो, और दूसरा, अपने दोस्त की गुस्से में की हुई बात दिल पर मत लो। अपने दिन का आगाज सदका देने से करो, फिर देखना उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं जाएगी। दोस्त के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। अपने दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, क्योंकि वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। अपनी जिंदगी के 3 असूल बनाओ। पहला, उससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो। दूसरा, उससे कुछ मत छिपाओ जो तुम पर एतबार करता हो। और तीसरा, उसको मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो। हर इबादत का पता नहीं होता कि वो कबूल है या नहीं, मगर दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो अदा होते ही कबूल हो जाती है। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर ना करो, बल्कि शुक्र अदा करो अपने रब का, जिसने तुम्हारे ऐब छिपाकर तुम्हें लोगों में मुअज़्ज़ज़ बना रखा है। जब तुम थक जाया करो तो अपने अल्लाह के सामने झुक जाया करो, क्योंकि लोग थोड़ी सी गलती पर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन वहीं अल्लाह थोड़ी सी इबादत में भी थाम लेता है। अल्लाह आजमाता है उन चीज़ों से जो तुम्हें बहुत प्यारी होती हैं, ताकि उन चीज़ों की मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह से मिला दे। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब हजारों आपके खिलाफ हो तो वो एक आपके साथ हो। मोहब्बत में खूबसूरती तब मायने रखती है जब आपका हमसफर आपको दीन के करीब कर दे। जाहिल की बात को बर्दाश्त करना अकल का सदका है। जब तुम्हें यकीन है कि खुदा तुम्हारे साथ है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन तुम्हारे खिलाफ है। झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है तुम सच बोलकर हार जाओ। ये दुनिया बदतरीन होती जा रही है, बुरे लोगों के ज्यादा होने की वजह से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से। जबान का लगा हुआ जख्म नेज़े और तलवार से लगे जख्म से ज्यादा गहरा होता है। खबरदार, उस पर कभी जुल्म मत करना जिसका मददगार खुदा के सिवा कोई ना हो। तुम्हारी जिंदगी का हर दिन तुम्हारी मौत की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। इल्म का एक कतरा जहालत के समंदर से बेहतर है, और अमल का एक कतरा इल्म के समंदर से बेहतर है। हर इंसान को ये फिक्र तो है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, लेकिन किसी को ये फिक्र नहीं है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। जो लोग दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं वो खुद भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाते हैं। जो शख्स किसी के साथ जाती करके अपने लिए इज्जत चाहता है तो अल्लाह उसे अपने इंसाफ के जरिए जिल्लत देता है।
किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारे नाम लेकर रो पड़े। उन बद्दुआओं से डरो जो बोलकर नहीं दी जाती। खून के रिश्ते ही आजकल रिश्तों का खून किया करते हैं। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक हम उन्हें फायदा पहुंचाते हैं। मतलब के बगैर राब्ते में रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। मुश्किल वक्त का एक फायदा जरूर होता है कि फालतू लोग जिंदगी से बाहर निकल जाते हैं। कभी मुखलिस तो कभी मुनाफिक हैं। ये मतलब परस्त लोग माहौल के मुताबिक हैं। औकात से ज्यादा दी गई हुई इज्जत और मोहब्बत कम ज़र्फ़ों को कभी रास नहीं आती। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, बल्कि इंसान ज्यादा उन चीजों से बीमार होता है जो अंदर ही अंदर उसे खा रही होती हैं। इंसान की दो ही कमजोरियां हैं, बिना सोचे अमल कर देना और सोचते रहना अमल ना करना। वक्त दिखाई नहीं देता मगर दिखा बहुत कुछ देता है। हम लोग भी कितने अजीब हैं, निशानियां महफूज रखते हैं और लोगों को खो देते हैं। आपकी मंजिल वहां तक है जहां तक आप हिम्मत नहीं हारते। झूठ रिस्क को कम कर देता है। जमीन की वकालत नहीं चलती जब कोई फैसला आसमान से उतरता है। जब आपको महसूस होने लगे कि सब रास्ते बंद हैं, तो अल्लाह ताला के रास्ते पर चल पड़ो। बेशक अल्लाह का रास्ता कभी बंद नहीं होता। सच्चे लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है और वहीं मुनाफिक लोग मुंह पर मुस्कुराते हैं और दिल में बुग़्ज़ रखते हैं। दुनिया में सबसे खतरनाक नशा किसी इंसान का नशा है, क्योंकि जो खरीदा भी नहीं जा सकता और जिसके बगैर रहा भी नहीं जा सकता। राब्ते बता देते हैं कि दिल में कितनी कदर है, क्योंकि कहने को तो इस दुनिया में सभी अपने ही होते हैं। कोई इंसान किसी इंसान को रुस्वा नहीं कर सकता, क्योंकि ये फैसले अल्लाह ताला करता है। माँ वो हस्ती है जिसकी दुआओं से रहमत बरसती है। अकल जैसी कोई दौलत नहीं, जहालत जैसी कोई गुर्बत नहीं, अदब जैसी कोई मेरास नहीं और मशवरे जैसी कोई मददगार नहीं। हजरत अली ने फरमाया कि जो दुआ कबूलियत में वक्त लेती है, फिर वो कबूल हो जाने पर वक्त ही बदल देती है। आज अगर जिंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। इसलिए अल्लाह से मांगो और खूब मांगो, क्योंकि अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देने पर कादिर है। मोमिन वो नहीं है जिसकी महफिल पाक हो, बल्कि मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। बेशक अक्लमंद आदमी वो है जो अपनी नफसानी ख्वाहिशों को रोकता है और गुस्से के वक्त में अपने आप को खामोश रखता है। हजरत अली ने फरमाया कि अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन जानो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। 5 जगहों पर 5 चीजों की हिफाजत करो, महफिल में ज़बान की, बाजार में आँख की, नमाज में दिल की, दस्तरखान पे पेट की और निगाह में हया की। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ दें उनसे दूरी इख्तियार कर लो। ये इंसान ताज्जुब के काबिल है कि वो चर्बी से देखता है, गोश्त के लोथड़े से बोलता है, हड्डी से सुनता है, लेकिन फिर भी घमंड उसको दुनिया से बढ़कर है। इस दुनिया में इंसान की कदर की 2 मंजिलें हैं, दिल में उतर जाना
یا پھر دل سے اتر جانا۔ تنہائی میں گناہوں سے بچو کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ ہوتا ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ اس دنیا میں علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور وہی عمل تمہیں تمہارے مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا رہے۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت ہمیں تب پتہ چلتی ہے جب یہ کہیں دور ہو جاتے ہیں۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ سورج کی روشنی زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق تسکین کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی مشکل میں کسی بزدل سے مشورہ مت لینا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ کسی شخص پر اس وقت تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔